जिस दिन मेरा प्रीलिम्स है, उस दिन मेरे को इतने क्वेश्चन तो 100% आते ही थे। वो क्वेश्चन कितने होते थे एंड हाउ फार वुड यू गो फॉर जिसे कहते हैं गेस वर्क? That is the thing about socio. I find it definitely very short as compared to eco. And socio के लिए background ना भी हो तो अच्छा score आ सकता है. If you remember Jatin Jain, he secured AIR 91 the year before me. So he was your student and he recommended Level Up to me. I went on to him. I said, okay, I don't know about the subject and ये सब की कौन सी कोचिंग अच्छी है, तो ही सेड कि आई वाज विद लेवल अप. वैसे इन ऑल ऑनेस्टी मैं टेस्ट डिस्कशंस जो जीएस के टेस्ट होते थे उनकी नहीं देखती थी. सोशियो में भी मैंने सोचा था कि लेट इट बी मैं मॉडल आंसर्स पढ़ लूंगी, बट मैंने एक जब डिस्कशन देखी. Saloni, we were going through your background and we found out that you graduated in economic honors. And so after graduating in economic honors, why did you think of switching to a different optional? I mean, you must have tried with economics also, and you did try. So what made you feel drawn towards a non-economics option, specifically sociology? What was the push factor and what was the pull factor? Uh, so push factor was the fact that I didn't score very well in eco, firstly, and secondly, so eco was my optional back in my first attempt, and then when I saw my mark sheet, I realized that my score in eco was very bad. So I thought कि चलो अच्छा score नहीं आया है, but it was not just कि ऑप्शनल में अच्छा स्कोर नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि शायद आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट आल्सो इन द सब्जेक्ट टू स्टडी टू द एक्सटेंट कि मैं उसमें अच्छा स्कोर कर सकती हूँ. समथिंग दैट यू नीड फॉर लाइक अ टॉप 50 टॉप 100 टाइप रैंक कि 270 280 तो टच करो, बट 227 पे आई वाज लाइक कि बहुत ही आई थिंक आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट, सो आई डोंट थिंक आई कैन डू वेरी वेल हियर. Pull factor, I would say, very interestingly, I've never read sociology in my life. I had studied pol science, I had studied psychology, but I was just very interested in society. Ki, acha, how do the dynamics of society work? Basically, dynamics. That was what I was interested in. Thinkers वगैरह नहीं पढ़े थे, but I saw bulk of the syllabus फिर भी कहीं ना कहीं dynamic ही है. वही चीजें पूछ रहे हैं. पेपर 1 पेपर 2 में काफी interlinkages हैं, synergies हैं. Thinkers be interesting ही लगे. So I was like, okay, this is the pull factor for me. I think sociology it is. So it was somewhere very instinctive also, but somewhere there was this thought behind it. क्योंकि I find it interesting, तो पढ़ाई हो जाएगी फिर भी. So these were the factors that pulled me towards socio. So, but why did you not opt for political science or public administration or geography? So geography तो anyway I was never interested in. Pub भी नहीं सोचा. Pol science I briefly thought about, but I thought कि फिर वो IR वाला aspect, अब optional बदल रही हूँ, फिर IR में you have to keep updating yourself and all of that. I was like, okay, I want to go for something जो एक बार समझ आ गया, उसके बाद observational है कि okay, if I've studied certain things, मुझे उसमें examples डालने हैं, तो around me whatever is happening मैं उसमें से डाल सकती हूँ. IR के लिए I will have to get into the depth of things, and I wanted an optional which is giving me good yield and I have interest in. So pol science was good. IR I was not very sure कि उतना update करना, उतना rigor I want once again जो मैं already eco में डाल चुकी हूँ. So I think those reasons maybe. Okay. So, Saloni, how do you now compare your graduation subject, economics, with sociology? Although the relation with sociology was very short term, unlike your relationship with economics. But how do you now compare these two subjects after having gone through these? So specifically from a UPSC perspective, I would Mhm. say eco is very bulky. So and also very textbookish. I find socio to be not very textbookish. Thinkers पढ़ने हैं शुरुआत के कुछ chapters में you'll have to learn things कि अच्छा sampling क्या होता है, ये सब क्या होता है. But after that ज़्यादा कुछ मतलब सिर्फ समझना है चीजें क्या हैं, किस thinker ने क्या क्या है, वो तो आप 3-4 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा. So that is the thing about socio. I find it definitely very short as compared to eco and more observational as compared to eco. Eco is bulky and it is textbookish, but having said that, if anyone is interested in eco you can score well. It's just that मेरा interest भी lose हो रहा था और मुझे मजा नहीं आ रहा था. So for me it was not for me, but it can be good for many people who have a similar background. But eco में मुझे लगता है background होना तो जरूरी है if you're opting for an optional like eco. एंड सोशो के लिए बैकग्राउंड ना भी हो तो अच्छा स्कोर आ सकता है. सो
These are Okay. the key factors. Okay. बोलते थे कि मुद्दे की बात पे आओ। सो आई थिंक इट वाज़ लार्जली दैट कि मुद्दे की बात पे कहीं न कहीं से यू हैव टू कम बैक। सो जब मैंने टेस्ट्स लिखे भी, मैंने टेस्ट आंसर राइटिंग सोशियो के लिए आफ्टर प्री ही स्टार्ट करी थी, उससे पहले मैंने नहीं करी थी कोई आंसर राइटिंग। 1-2 आंसर्स लिख लिए होंगे बट प्रॉपर्ली फॉर्मली आई स्टार्टेड आफ्टर प्रीलिम्स एंड आई रियलाइज्ड खुद ही आंसर्स देख के कि यार ओके आई एम गेटिंग लॉस्ट हियर। एक बार आई हैड अ वर्ड विद यू ओवर कॉल आल्सो एंड यू मेड मी रियलाइज वेरी सिंपल थिंग्स कि इसमें तो ये पूछा ही नहीं था। So it's okay if you're getting lost in the very beginning because you know so much. So you have to put that into like 2 pages or 3 pages or 4 pages, whatever that is. So it is difficult, but highlight the keywords. That's important. And remind yourself कि okay, कि मैं कितने मार्क्स का आंसर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। 10 मार्क्स का है तो मुझे सिर्फ मुद्दे की बात करनी है। If it's a 15 marker or a 20 marker, then I can come to like थोड़ा बहुत आगे पीछे की बात। और मुझे अगर थोड़ा कंक्लूड करना है, मतलब थोड़ा फ्लिप साइड बताना है 10 मार्कर में, आई कैन डू दैट ओनली इन कंक्लूजन। सो हाइलाइट कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन पेपर एंड देन ट्राई टू स्टिक टू दैट एंड एक्टिवली रजिस्टर कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो। बिकॉज आई रियलाइज्ड विद मी इट हैपेंड दैट 10 मार्क्स में भी मैंने पूरा फर्स्ट पेज वेस्ट कर दिया है। तो जो पूछा है वो मैं सेकंड पेज पे शुरू कर रही हूँ। तो देन यू रियलाइज ओके आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ स्पेस। So that is very important to make that distinction. Okay. And what was the role of what we call as current affairs in your preparation of sociology, and uh, how far would you rate them as important in your preparation of sociology, or do you think it's not that important, it's overhyped? Because there are many YouTube channels, also Telegram channels also available out there, who keep bombarding students with lot of current information. Do you really think it's important, or we just get drawn into these and get carried away without realizing the importance of static? So I What's your analysis? So I think more than current affairs, I say that contemporary affairs are more important for this exam. For example, there was a question on NEP this year. Now, NEP is not current in any way. It came out in I believe 2020. So you have to know about what is happening. अब वो static बन चुका है largely कि it's not current as such. So I feel like you have to know कि अच्छा कुछ बहुत major event है तो वो सोशियो के लिए relevant है। बाकी आप कुछ देख रहे हो वो आप एग्जाम्पल पिक कर सकते हो एंड आप अपने उसमें कोट कर सकते हो आंसर्स में। बट आई बिलीव दैट इज ट्रू, ओवर एक्सपोजर टू कंटेंट है, अभी कंटेंट की कोई कमी तो है नहीं। बट वो आई बिलीव कंटेम्प्रेरी अफेयर्स फॉर सोशो प्रिपेयर करने का यही तरीका है। मेजर थिंग्स वी हैव टू प्रिपेयर कि एजुकेशन के फील्ड में कुछ हो रहा है, हेल्थ के फील्ड में कुछ हो रहा है तो पिक कर लो। थोड़ा सा स्टैट्स याद कर लो, मैल न्यूट्रिशन पे कोई क्वेश्चन आ गया एंड ऑल ऑफ दैट। बट अदर देन दैट पिक एग्जाम्पल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स योरसेल्फ। ऐसे कोई डेडिकेटेड सोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स की जरूरत सोशियोलॉजी के लिए मुझे नहीं लगी। Okay. So, if I ask you in the same context, suppose there is an article on new education policy. Um, Second day, there is another article on the same policy, but this time around, it's in the other newspaper, not in the Hindu. It's in the Indian Express. Okay, and this keeps that keeps happening. It does not stop anywhere. So where do you put a stop in your preparation? That okay, I don't need to go further into anything. Whatever I required, वो हो गया है मेरा, जो मुद्दे की चीज थी वो हो गई है. How do you decide? This is the point. सर आई थिंक न्यूज़पेपर्स में या ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन तो इतनी है ना, इट्स जस्ट वी मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम खोज क्या रहे हैं उसमें से। Mhm. सो एनईपी आपने कर लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए कि क्या चेंजेस हैं, पॉजिटिव्स कर लिए, नेगेटिव्स कर लिए। जैसे मैंने प्रिपेयर कर रखा था 2-3 थिंकर्स जो पॉजिटिव थे, 2-3 थिंकर्स जो क्रिटिसिज्म में थे उसके, उतना हो गया। उसके बियॉन्ड कोई कुछ भी कहता रहे, लिखना तो मुझे उतना ही है। सो यू हैव टू नो कि अच्छा आई कैन राइट अ 2 पेज आंसर ऑन दिस, आई कैन राइट अ 3 पेज आंसर ऑन दिस। इसके बियॉन्ड मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड न्यूज़पेपर्स तो चेज़ 2 पेपर्स चेज़ करने का कोई पॉइंट नहीं है। आई स्टडीड इंडियन एक्सप्रेस एंड आई स्टडीड इंडियन एक्सप्रेस थ्रू आउट। आई
आई डाउट आई एवर पिक्ड अप हिंदू। थोड़ा सा इंटरव्यू प्रेप में मैं थोड़ा बहुत देख लेती थी इधर उधर, बट एक पेपर, वट एवर पेपर यू पिक्ड अप, इफ यू पिक्ड अप हिंदू, फॉलो थ्रू दैट। बट जब आपका कंटेंट पूरा हो गया, एंड अगर एक पेपर से नहीं भी हो रहा है, आई फाइंड इट इजियर टू सर्च ऑनलाइन, कि एनईपी यूपीएससी सर्च किया, एक दो कुछ मिल गए कंटेंट्स, एंड देन कंप्लीट योर नोट्स एंड शट द टॉपिक। सो जब आपका 2 पेज 3 पेज का आंसर कंप्लीट हो गया, उसके बाद it's pointless for the exam perspective. ओके, सो व्हेन यू से कि जब आपका 2 या 3 पेज का आंसर रेडी हो गया, सो वो क्वेश्चन क्या था जिसका आंसर आपने रेडी किया 2-3 पेज में? आपके दिमाग में वो क्वेश्चन क्या चल रहा था? क्वेश्चन ऐसे कुछ नहीं था, आई वाज जस्ट लाइक ओके, एनईपी पे क्वेश्चन आया तो मैंने उसको बांट लिया, स्कूल एजुकेशन में ये चेंजेस है, कॉलेज एजुकेशन में ये, और वो फ्लो चार्ट फॉर्म में मैंने अपने नोट्स में था, फ्लो चार्ट फॉर्म में ही मैं वो चेंजेस लिख के आई, एंड देन पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिए कि इस थिंकर ने ये कहा, इस थिंकर ने ये इश्यूज बोले हैं। आया भी वही था कि एनईपी से रिलेटेड मान लो पॉजिटिव्स भी पूछ रहे हैं, 3 से ज्यादा वैसे भी थिंकर्स मुझे उसके याद नहीं होंगे, तो बना के कुछ लिख देंगे अपने मन से कि मुझे ये लगता है, 3 थिंकर्स ही तो डालोगे। अगर सिर्फ पॉजिटिव पूछा, अगर सिर्फ नेगेटिव पूछा, तब भी उतने ही डलेंगे, क्योंकि ये थोड़े एंसिलरी टॉपिक्स हैं। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, जितना सब कर रहे हैं बेयर मिनिमम, उतना इफ you're डन एंड you're thorough with it, it's better. It's worse if you have so much in your notes and you cannot recall in the exam. So that is what was my mantra. I kept it very, very simple, very, very easy and basic. ओके, तो दैट मीन्स कि आपने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे इस पूरी जर्नी में फॉर एवरी सब्जेक्ट? For socio फॉर particularly. सोशो में? हाँ ओके, जी, हाँ जी। ओके, ठीक है। ओके, सो सलोनी, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट लेवल अप आईएएस? Sir, actually, if you remember Jatin Jain, he secured AIR 91 the year before me. So he was your student and he recommended Level Up to me. I went on to him. I said, कि, okay, I don't know about the subject and ये सब की कौन सी coaching अच्छी है. So he said कि I was with Level Up. So it was through his recommendation that I reached out. ओके, सो हाउ डिड यू डिसाइड कि मेरे को टेस्ट सीरीज करनी है, क्रैश कोर्स है? क्योंकि स्टूडेंट्स कभी-कभी ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते। व्हाट वाज़ योर क्राइटेरिया टू डिसाइड? सर आई जस्ट थॉट कि टेस्ट सीरीज, मतलब मेरे पास टाइम नहीं था, प्री के बाद मैंने आंसर राइटिंग वैसे भी नहीं करी थी, तो मुझे लगा कि शायद मैं वीडियोस वगैरह देख ना पाऊँ ज़्यादा, सो आई वेंट विद टेस्ट सीरीज। बट अगर समबडी इज नॉट थरो विद सिलेबस एंड लगता है कि ओके यू कैन स्पेंड टाइम ऑन watching videos and getting some more clarity, then you can go for crash course. So it is one's own standing in the subject that will help one decide. Okay. And the discussions that used to take place after test, And what sort of value addition did you get from those discussions? सर डिस्कशंस पहले मैं वैसे इन ऑल ऑनेस्टी मैं टेस्ट डिस्कशंस जो जीएस के टेस्ट होते थे उनकी नहीं देखती थी। सोशियो में भी मैंने सोचा था कि लेट इट बी, मैं मॉडल आंसर्स पढ़ लूंगी, बट मैंने एक जब डिस्कशन देखी तो मुझे लगा ओके आई एम गेटिंग मच मोर क्लैरिटी ऑन दिस, कि इट्स बेटर कि ऑप्शनल में तो आप टेस्ट की डिस्कशंस देख लो, मॉडल आंसर्स है वन थिंग, बट ऑप्शनल में वो जो की टॉपिक्स होते हैं वही टेस्ट में पूछे जा रहे हैं और वही एग्जाम में आएंगे, तो उनपे क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी थोड़ी सी चाहिए होती है। So when I watched one, I decided, okay, I'm going to watch all 8 videos का discussions. So I think वो important topics पे clarity काफी मिली and काफी जगह value addition भी हो गया। For example, एक particular test में आपने question डाला था new international division of labor क्या है by someone. So I उसमें फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपने उसमें भी टेस्ट डिस्कशन में बोल दिया था एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क पे आए तो डाल देना। सो दैट्स व्हाट आई डिड, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था, नेचर ऑफ वर्क आज की सोसाइटी में कैसा है, एंड मैंने एज इट इज वहां पे उसका वो कॉन्सेप्ट ही उसने इस कॉन्सेप्ट से बोरो करके इसको एक्सटेंड किया, एंड दिस इज हाउ इट्स वर्किंग आउट। सो आई बिलीव वैल्यू एडिशन के लिए भी थोड़ा क्रूशियल हो जाता है, तो मैं सिर्फ मॉडल आंसर्स देखती तो I wouldn't have gotten that perspective. Okay, I can add it to my notes of this in this topic, and that's how I can use it as it is in the exam. So you get that kind of perspective if you watch test videos, especially for optional. GS में I wouldn't recommend going into मतलब watching so many videos, but optional में I would say people can watch test discussion videos certainly. Okay. And let us also briefly talk about GS because prelims is around the corner. थोड़े दिन रह गए हैं.
how many questions did you know in an absolute manner कि भाई मुझे जिस दिन मेरा प्रीलिम्स है उस दिन मेरे को इतने क्वेश्चन तो 100% आते ही थे, वो क्वेश्चन कितने होते थे, एंड हाउ फार वुड यू गो फॉर जिसे कहते हैं गेस वर्क? सर सर्टेनली क्वेश्चंस तो बहुत कम आते होते हैं, मतलब यू अटेम्प्ट समवेयर अराउंड 80-85 क्वेश्चंस। द ईयर आई डिडंट गेट थ्रू प्री वाज, मतलब वो ट्रेजेडी यही थी कि मैंने कम अटेम्प्ट करे थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सो आई बिलीव कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्फिडेंट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छा मुझे दिस इज़ माई ऑप्टिमम। मेरा ऑप्टिमम वाज ऑलवेज अराउंड 85 to 90, एंड आई थिंक वो जो आपका ऑप्टिमम चल रहा है, आपकी जिस हिसाब से एक्यूरेसी उस हिसाब से अटेम्प्ट करो, पेपर चाहे जितना भी मुश्किल हो। आई फेल्ट लाइक पेपर वाज सो रैंडम इन 2023 कि आंसर की देख के भी लगा कि अच्छा अगर ये क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा वाले अटेम्प्ट ना ही करे होते और सर्टेनिटी से जो क्वेश्चन मैं सही सोच रही थी वो वैसे भी गलत हैं, तो हाउ डज इट वर्क आउट? सो आई बिलीव कि रैंडम गेस वर्क नहीं है, थोड़ा सा एजुकेटेड गेस वर्क है, एंड वन कैन गो फॉर एजुकेटेड गेस वर्क. You have to think deeper. Actually, UPSC is just trying to make you unsettled. They're trying to push you put you under pressure. कि अच्छा आपने सुना नहीं है इसके बारे में, but hint is somewhere in the question. So you can break down the question. You can break down the options. There are multiple people who मतलब multiple rankers who have videos on YouTube जिसमें वो पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं प्री का. So ऐसा नहीं कह सकते कि गेस वर्क doesn't work, और because it's not तुक्केबाजी, इट्स बेसिकली डिकोडिंग. सो आई बिलीव दैट डिकोड तो करना चाहिए हर क्वेश्चन, जितना भी मुश्किल लगे. इट यू कैन ब्रेक इट डाउन टू वेरी सिंपल दिस थिंग. तो सर्टेनिटी से 30-40 भी आते हैं, तो यू कैन रीच अ फिगर ऑफ 80-85 अटेम्प्ट्स इन ऑल ऑनेस्टी. Okay, so basically, out of your experience, you are saying that we can't prepare for all the 100 questions. We can never prepare for 100 questions, and the maximum that we can prepare for would be around 35 to 40. And rest 40, that means if you are marking 80 questions, would be an educated guess. Right. So, and we can't be prepared beforehand for that. Yeah. We will have to sort those things on this D-Day only. Also, like, I believe that your knowledge base helps you crack those questions. For example, they are asking you कि XYZ animal कहाँ पे मिलता है, and they're giving you 4 national parks. You have to make some linkages. There was a question जहाँ पे उन्होंने कोई mountain region का animal दे रखा था, and उसी type के national parks थे. तो you have to draw linkages. अच्छा ये animal I've read somewhere is found in such regions. And इनमें से कौन से national parks हैं जो वहाँ मिलते हैं? So I believe you're not certain about it, but it's not a random guess. You're somewhere trying to link everything. So it's good if you're preparing well. It's not like कि सिर्फ basic लक्ष्मीकांत और इको मतलब पॉलिटी और इको के ही certainty से होते हैं ज़्यादातर. तो but beyond that, your knowledge base will help you crack those questions, is what I think. Okay. And Saloni, one more question regarding prelims. We know that students give most of their time to their prelims preparation, mainly because of the eliminating factor that it involves. But they are not able to understand, or they are not able to figure out where should we put a stop in our preparation. Um, should we go into medieval to this extent, or ancient to this extent, or environment or science or economy to this extent? How can one decide कि बस मेरा हो गया है, इतना काफी होता है, बाकी तो उस दिन वैसे भी लॉजिकल रीजनिंग मुझे यूज करनी ही है पेपर वन में? वो वो बाउंड्री कौन सी है? सो बाउंड्री आई वुड से कि आपने जो बुक एक डिसाइड करी है एंशियंट के लिए या एक मिडीवल के लिए, तो वो कंप्लीट कर दो एंड पीवाईक्यूज कर लो. एंड आप जब टेस्ट दे रहे हो उसमें से इफ यू आर पिकिंग समथिंग तो वो कर लो, बट बियॉन्ड दैट डोंट एक्सटेंड इट बियॉन्ड दैट. मतलब स्पेशली लो यील्डिंग एरियाज. सो एंशियंट मिडीवल से क्वेश्चंस आ रहे हैं. मिडीवल तो पहले लोग छोड़ भी देते थे मिडीवल की प्रेपरेशन, बट अब प्रॉपर दो तीन क्वेश्चंस वी सी एवरी ईयर. सो आई वुडंट से कि छोड़ दो, बट आपने अपनी बुक कर ली, आपने पीवाईक्यूज कर ली, एंड आपने मॉक से कुछ रिवर्स लर्निंग कर ली, बट दैट्स इट. डोंट गो बियॉन्ड दैट. पीवाईक्यूज ही मुझे लगता है आर योर बेस्ट एंकर फॉर दिस. सो पीवाईक्यू ओरिएंटेड अपनी प्रेप व्हाटएवर योर सोर्सेज उससे कर लो, एंड दैट्स इट. दैट्स द लाइन. बिकॉज कितना भी कर लो नहीं याद होगा. एंशियंट के लिए इट हैपेंड. प्री में कुछ क्वेश्चन आए थे जो मेरे
सोर्स में थे भी और मैंने वो सोर्स 4-5 बार पढ़ लिया था बट मुझे फिर भी नहीं आता बिकॉज़ इट इज़ सो रैंडम किसने कौन-सी बुक लिखी एटसेट्रा एंड देन यू कांट ड्रॉ द लिंकेज तो जितना आई बिलीव यू कैन रिवाइज़ योर कोर सोर्स वेल just do that is what I'd say. Okay. And Saloni, one last question. Uh, although you have finally secured your rank and finally managed to etch your name in the holy PDF, but by chance, God forbid, अगर आपका इस बार नहीं हुआ होता, then how would you have re-strategized your preparation? And क्योंकि नाम ना होने के बाद बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और कभी-कभी स्टूडेंट्स को लगता है यार अब प्री की तैयारी कैसे करें और बहुत टाइम जाता है एंड देयर आर मेनी सच स्टूडेंट्स इन सच पोजीशन तो आप तब प्री के लिए क्या करते उस टाइम पे? सर सबसे पहले तो मैं इस बार सीसैट पढ़ लेती बिकॉज़ लास्ट टाइम मैंने सीसैट नहीं किया था एंड हुँ, मेरे 76 के अराउंड थे व्हिच इज़ ओके बट व्हिच इज़ नॉट ओके क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस ऊपर ही हो आप 66 से तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज़ व्हिच इज़ आल्सो अ रिमाइंडर टू एवरीवन एल्स हू इज़ प्रिपेयरिंग फॉर प्री दिस ईयर कि प्रिपेयर सीसैट वेरी वेल इट हैज़ बिकम अ very brutal eliminating kind of a paper this year. But as far as GS is concerned, I would go back to my static. I believe static की yield जितनी है उतनी current affairs की नहीं है. Current करना है but again contemporary चीजें करनी है. हर random PDF उठा के उसको prepare नहीं करना है. So that is what I will do. I will revise my Lakshmikant, my Spectrum, my basic eco questions. I will revise PYQs जो मैंने आज तक बहुत बार करे हैं, हर अटेम्प्ट से पहले करे हैं, बट आई वुड स्टिल रिवाइज पीवाईक्यूज बिकॉज़ पीवाईक्यूज से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सिमिलर थीम्स पे. सो दैट इज व्हाट आई वुड डू एंड आई वुड गिव अ फ्यू मार्क्स लाइक फुल लेंथ. अब एट दिस stage I would just give full length marks and not sectional marks, but if someone is in their first attempt they can also take some sectional marks. So I think that is what I would focus on, but prepare for CSAT is what I would tell people because last year CSAT was really brutal for a lot many people. I was very scared जब तक रिजल्ट नहीं आया था जबकि प्री में I was very well above the cutoffs, but CSAT में I was not sure. Okay. So, and one last question related to sociology. Students keep running after thinkers a lot. They have basically equated discipline with thinkers, and that happens with social sciences, be it political science, sociology, PSIR. Okay, but uh, उनको ये कैसे पता चलेगा कि here they are just name dropping. They are Hmm. not really कहते हैं fitting in the thinker according to the demand. They are just dropping the name. वो कैसे पता चलेगा उनको? So I think self analysis and peer analysis बहुत important है in this regard. It's okay आपने टेस्ट लिखा आपको एनालिसिस मिल गया बट जब आप खुद पढ़ोगे ना अपने आंसर्स तो आपको लगेगा बट उससे मुझे समझ क्या आया मतलब आई हैव मेड द सेम मिस्टेक्स एंड हियर आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक जतिन. He actually really helped me. I used to share my copies with him and he used to analyze some of my copies and he helped me realize where I was faltering. So if you get a good peer group, very good for you. Prepare with them. Answer एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो एंड सेल्फ एनालिसिस उतना आई फील कि कोचिंग से या तो आप 1-to-1 फॉर एग्जाम्पल फैकल्टी से बात करो बट वो भी कितना कर लोगे हर एक क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर सकते जितना सेल्फ एनालिसिस कैन हेल्प यू उतना नथिंग एल्स विल हेल्प. सो व्हेन यू रीड योर ओन आंसर्स टेक सम टाइम. जिस दिन लिखा है उसी दिन मत पढ़ो. उस दिन वी आर वेरी इमोशनल अबाउट आवर आंसर्स कि नहीं सही तो लिखा है. So I realized it later कि अच्छा अगर मैं 10 दिन बाद पढ़ रही हूँ then I realized कि okay I'm not making as much sense as I thought I was making when I was writing this answer. So self analysis is very very important and if you can find serious लोगों का एक दो लोगों का good peer group then they can also help you very well. So Okay. So basically, you have to look at your answer as an outsider and not get emotionally yeah. attached कि नहीं मेरा आंसर तो बेस्ट ही होएगा. Yes sir, Okay, yes. ठीक है. So Saloni, with this we are going to wrap up the session, and I'm really thankful to you for having this session with us, and I wish you all the very best for your future endeavors. And I'm sure कि आप जहाँ पे भी जाओगे फोड़ोगे ही क्योंकि आई गेस आपका प्रोफाइल भी ये बताता है फोड़ो ही रहे हो शुरू से. Thank you so much sir. Thank you for having me. It's been a pleasure talking to you.
Thank you. Thank you, Saloni. Thank you. Thank you.